Good morning, students. Today we are going to perform the activity of reactivity of metals. So for this reactivity, first see it's for class 10, experiment number 2, reactivity of metals. Means in this experiment we will see how the metals react with their solutions of other metals. So for our experiment, we will take 4 metals: aluminium, zinc, iron and copper sulfate. So as you can see, first let me see the color of different metals. So as you can see, this is the color of aluminium foil. Okay. Second, this is the color of zinc metal, silvery white color. Then third one is the color of iron nail, it's a grayish black color. And last one, the color of copper metal. So as you can see, the color of 4 different metals. So here only 2 metals, aluminium and zinc, have the same color, and the rest of the metals, they have different colors. So these are the color of different metals. Now we will take the 4 solutions of all these 4 metals. First solution, aluminium sulfate. As you can see, the color of aluminium sulfate, it is transparent. Second one, color of zinc sulfate. So as you can see, the color of zinc sulfate, it is transparent. Third one, FeSO4. So as you can see, the color of FeSO4. And last one, the color of copper sulfate. So the color of copper sulfate is blue color. So in our experiment, what we will do, we will add 3 metals. Okay, we will add 3 metals in the solutions of 4th metal. Means in the solution of aluminium sulfate, we will add zinc, iron and copper. In the same pattern, in solution of zinc sulfate, we will add aluminium, iron and copper. In solution of iron sulfate, we will add aluminium, zinc and copper metal. And last, in solution of copper sulfate, we will add aluminium, zinc and iron. So for our experiment, first we will divide the solutions in 3 test tubes. First, solution of, this is solution of aluminium sulfate. So in 3 test tubes, I am going to add solution of aluminium sulfate. We will make the volume equal in all 3 test tubes. So I have taken here 3 test tubes, 1, 2 and 3. In test tube, in first test tube, I will add zinc. Okay, I am adding zinc metal. So this is, I am going to add this zinc metal into first test tube. In second test tube, I will add iron. So here I am using iron nail. Okay, I am using iron nail. So here is iron nail. Third is in copper. So here in third test tube, I will add copper. In the same way, in the solution of zinc sulfate, so I will take 3 different test tubes, and again in these 3 test tubes, we will add solution of zinc sulfate. So first test tube, second test tube, third test tube. Again, see the sequence. First, in first test tube, I will add aluminium foil.
this is aluminum foil. In second test tube, I'll add iron. So in second test tube, I'll add iron, and in third test tube, I'll add copper. This is third test tube. In the same way, in these three test tubes, I'll add ferrous sulfate. As you can see, the color of ferrous sulfate, it is light green color. It's a pale green color. So in these three test tubes, 1, 2 and 3 test tubes. Again, I'll add aluminium, zinc and copper. So in first test tube, aluminium. In second test tube, zinc. And in third test tube, copper. And last, in the solution of copper sulfate, first I'll add copper sulfate in 3 test tubes and make their volume equal. So these are 3 test tubes, 1, 2 and 3. Okay, these are 3 test tubes. In first test tube, I will add aluminium. So in first test tube, aluminium. In second test tube, zinc. So here in second test tube, zinc. In second test tube, zinc, and in third test tube, iron. So here I will add this iron nail. Okay, and after adding the metals in different solutions, we will leave our system undisturbed for 30 minutes. And after 30 minutes, we will check what is the change in the color of the solutions. It means if the color of solution is, first I am writing here the color, this is colorless, this solution FeSO4, this solution has color pale green color, and copper sulfate, so the color of copper sulfate, it is blue. Okay, and also note down the color of metals. Zinc, okay, also note down the color of metals. First, the color of zinc, this is silver white color, and aluminium and zinc, they have silver white color. Iron, so iron has color grayish black, and copper, so the color of copper is reddish brown. Okay, also we will check the color change in color of in these metals. So leave our system for 30 minutes. After 3 hours, now our experiment is complete. In first case, where aluminium sulfate solution was mixed with zinc. So here, let me tell you one thing. If there is chemical reaction, then there will be some changes, either in the solution or in metal. For example, if here, what is the meaning of this reaction? First, let me tell you the meaning of this pattern. This is aluminium sulfate plus zinc, aluminium sulfate plus iron, aluminium sulfate plus copper. Okay, so this is the meaning of, so before plus, this is the solution. So here, if something is happening in the solution, then there will be change in color, or there will be change in the metal, or there will be some deposition. So here, if, for example, if aluminium sulfate Al2SO4 whole thrice, if it
reacts with zinc, if it reacts with zinc, there will be some changes in the solution and the compound will be zinc sulfate plus aluminium. And since zinc is replacing aluminium, so there will be some deposition of aluminium around zinc metal. Okay, here for example, if this is the zinc metal, so around this zinc metal there will be deposition of aluminium. Okay, if reaction is there, if there is no reaction, means Al2SO4 whole twice plus Zn. If there is no reaction, then there will be no change. Okay, so we have two type of possibilities. Two possibilities are, first maybe reaction, the reaction may be there, and second nothing is happening. So here first see what is the observation. So let's take first test tube. In this test tube we have added aluminium sulfate and zinc. So if you see the color of zinc, then you will see there is no reaction. There is no reaction. Okay, so there is no any change. I am taking second test tube. In second test tube, aluminium sulfate plus iron, again no reaction. No reaction means what? And third, aluminium sulfate plus copper, so again there is no reaction. So what is the meaning of this reaction? If there is no reaction, it means, here see, this is the first condition. In first condition, reaction is there. So if some changes is observed, then it means zinc is more reactive than aluminium. Okay, मतलब क्या, सिंपल से समझना है इसको. मीनिंग क्या है कि यदि हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन होने का हम एविडेंस कैसे लगाएंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गई या नहीं, तो उसका बहुत सिंपल सा पैटर्न है. और वो पैटर्न ये है कि यदि हमारे पास सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है, कोई डिपोजिशन हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, केमिकल रिएक्शन उसमें हो गई. तो हमको ये देखना है कि यहाँ पर जिंक और एल्यूमिनियम दोनों में से रिएक्टिव कौन है. यदि रिएक्शन हो गई तो जिंक रिएक्टिव है, यदि रिएक्शन नहीं हो रही है तो एल्यूमिनियम रिएक्टिव है. तो यहाँ हम देखें ऑब्जर्वेशन में, यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब मेटल कौन सी है इसमें, यहाँ पर मेटल है एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम और जिंक दोनों में रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम और जिंक दोनों में रिएक्शन नहीं हो रही है. रिएक्शन नहीं हुई है इसका मतलब सॉल्यूशन में जो मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है. तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, like that aluminium is more reactive than iron and aluminium is more reactive than copper. So aluminium ये हमारे पास जो चार मेटल्स हैं, चार मेटल कौन कौन सी है, फर्स्ट मेटल है एल्यूमिनियम, सेकेंड मेटल है जिंक, थर्ड मेटल है आयरन एंड कॉपर. इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? तो यहां से कंक्लूजन हमारे पास है कि एल्यूमिनियम जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर से भी ज्यादा रिएक्टिव है. तो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गई. ठीक है, एल्यूमिनियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल. अब आते हैं हम सेकेंड सॉल्यूशन में. सो सेकेंड सॉल्यूशन में हमने ऐड किया है यहां पर ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम. तो यहां पर मेरे को हल्का सा व्हाइट प्रेसिपिटेट दिख रहा है, बहुत हल्का सा है. तो यहां पर समथिंग इज हैपनिंग. ठीक है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, ZnSO4 प्लस एल्यूमिनियम. तो यहां पर रिएक्शन हो रही है क्योंकि एक हल्का सा प्रेसिपिटेट हमको व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये सॉल्यूशन में दिखेगा. तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा Al2SO4 होल साइज प्लस Zn. और जिंक का कलर कैसा है, जिंक का कलर है सिल्वरी व्हाइट कलर. तो इसका मतलब ये होगा कि एल्यूमिनियम और जिंक दोनों की रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी तो इसका मतलब जिंक और एल्यूमिनियम में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम. और यहां पर भी हमने देखा है एल्यूमिनियम और जिंक की रिएक्शन नहीं हो रही है, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम और जिंक सल्फेट की रिएक्शन होगी. तो यहां हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, एक कंक्लूजन ये निकालते हैं हम, कंक्लूजन ये है
Al2SO4 whole thrice plus Zn, then there is no reaction. ये पहला वाला कंसेप्ट है, Al2SO4 whole thrice plus Zn, there is no reaction. और इसी को उल्टा कर देते हैं, रिवर्स करते हैं. रिवर्स मतलब क्या, मेटल लेते हैं एल्यूमिनियम और सॉल्यूशन किसका लेंगे, जिंक सल्फेट का. तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी और रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Al2SO4 whole thrice plus Zn. तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्शन करेगा जिंक के साथ, या फिर एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा जिंक सल्फेट के साथ. तो यहां से हमारे पास पॉइंट क्या है, दो एलिमेंट हम लेंगे एल्यूमिनियम और जिंक. एक एलिमेंट का लेना है सॉल्यूशन और एक एलिमेंट को लेना है प्योर, और हमको देखना है उनकी रिएक्शन. तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो रिएक्शन वो सॉल्यूशन में रहेगा, और जो कम रिएक्टिव होगा वो बाहर चले जाएगा. तो यहां से देखना हमको, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही है मतलब ये कम रिएक्टिव है, इसमें रिएक्शन नहीं हो रही है इसका मतलब ये जिंक जो है ये कम रिएक्टिव है. यहां पर रिएक्शन हो गई, इसका मतलब ये एल्यूमिनियम कैसा है, ज्यादा रिएक्टिव है. तो हम ये रिएक्शन देख करके समझेंगे कि जो एलिमेंट हमने लिया है, जो मेटल हमने लिया है सिंगल स्टेट में, यदि रिएक्शन होगी तो वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, और रिएक्शन नहीं हो रही है तो वो मेटल कम रिएक्टिव है. चलिए ये तो हो गया पहला ऑब्जर्वेशन. सेकेंड ऑब्जर्वेशन, यहां पर कोई चेंज नहीं दिख रहा है, कोई चेंज नहीं दिखा है, इसका मतलब यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, देयर इज नो रिएक्शन. एंड आफ्टर दैट लास्ट कॉपर. तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कॉपर में भी क्या हो रहा है, देयर इज नो चेंज. तो यहां पर भी कोई रिएक्शन नहीं हुई है. तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकालें, जिंक, इन तीन जो हमारे पास मेटल्स हैं एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, इन तीनों में से जिंक किससे ज्यादा रिएक्टिव है और किससे कम रिएक्टिव है. तो ये देखो पहले में रिएक्शन हो गई, इसका मतलब एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, इसमें रिएक्शन नहीं हो रही है, आयरन कम रिएक्टिव है, कॉपर इसमें कम रिएक्टिव है क्योंकि इसमें भी रिएक्शन नहीं होगी. तो जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम उसके बाद है जिंक. तो ये मिल जाएगा हमें ऑर्डर जिंक एंड एल्यूमिनियम का. थर्ड में आते हैं FeSO4 पेल ग्रीन कलर. फिर पेल ग्रीन कलर में यहां पर एल्यूमिनियम के चारों तरफ हमको डिपोजिशन दिख रहा है, सॉल्यूशन में थोड़ा सा इम्प्योर है सॉल्यूशन. तो यहां पर रिएक्शन क्या होगी, Fe प्लस यहां पर रिएक्शन होगी Al2SO4 होल थ्राइस प्लस Fe. इसका मतलब एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है. इसमें हमें प्रोडक्ट मिलेगा ZnSO4 प्लस Fe. इसका मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है. और लास्ट कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी. तो इसका मतलब क्या होगा, एल्यूमिनियम भी ज्यादा रिएक्टिव है, यहां से हमने कंक्लूजन निकाला हुआ है. जिंक भी ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है. कॉपर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, इसका मतलब कॉपर लेस रिएक्टिव है. सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. और लास्ट ऑब्जर्वेशन, अब इस ऑब्जर्वेशन में देखना कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है. तो सबसे कम रिएक्टिव मतलब क्या, हमने जो तीन सेट बनाया हुआ है सब में रिएक्शन होगी. चलिए देखते हैं. अब यहां पर कॉपर की रिएक्शन सबसे बड़ी रिएक्शन होती है. कैसे, फर्स्ट ये हमने लिया था एल्यूमिनियम एंड कॉपर सल्फेट. तो आपने याद होगा कॉपर सल्फेट का कलर कैसा था, ब्लू कलर. लेकिन ये सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, यू कैन सी हियर द कलर ऑफ सॉल्यूशन. दिस इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन. हियर यू कैन सी द डिपोजिशन ऑफ रेडिश ब्राउन कॉपर ऑन एल्यूमिनियम फॉइल. ये मैं इसको निकाल के दिखा रहा हूं कि कैसे एल्यूमिनियम फॉइल और कॉपर के बीच में रिएक्शन हुई है. So here you can see the color. ये कलर क्लियरली देख सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा. ये देख सकते हैं, इसमें कलर कैसा हो रहा है, बिल्कुल रेड कलर, इसमें रेडिश ब्राउन डिपोजिशन दिख रहा है एल्यूमिनियम फॉइल के चारों तरफ. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में नीचे आपको डिपोजिशन दिख रहा होगा रेडिश ब्राउन कलर का. तो ये इसको मैं इसी में फिर से यदि इसको डिसॉल्व कर रहा हूं, ये देखिए कलर
ये एक्चुअली सेक कर दिया मैंने, फिर से सेटल डाउन हो जाएगा। तो दोनों में कलर डिफरेंस दिख रहा है, ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो गया, रेडिश ब्राउन में। तो इसकी मीनिंग क्या है, इफ देयर इज रिएक्शन, तो यहां क्या हो गया, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस कॉपर, क्योंकि कॉपर का कलर कैसा है, कॉपर मेटल का हमने कलर देखा हुआ है रेडिश ब्राउन कलर। तो ये रेडिश ब्राउन कलर किसका है, कॉपर का, और सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। सेकेंड जिंक, तो जिंक के साथ रिएक्शन ये हमने लिया है, ब्लू कलर सॉल्यूशन पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पर रिएक्शन कौन सी हो गई, यहां पर रिएक्शन है ZnSO4 प्लस Cu। अब आप देखिए इसमें कलर, आई एम कमिंग टू क्लोज टू, यहां पर आप देख सकते हैं कि डिपोजिशन कैसे क्लियरली दिख रहा है, ब्लू कलर सॉल्यूशन और अभी कैसा हो गया, पूरा ट्रांसपेरेंट और नीचे डिपोजिशन मिल रहा है। ये देखिए, ये डिपोजिशन को चेक करूं तो यहां से आपको क्लियरली समझ में आएगा कैसे डिपोजिशन हो रहा है। सो ये हमारा सेकंड कंक्लूजन है, और सेकंड कंक्लूजन कौन सा, कॉपर सल्फेट एंड जिंक, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और लास्ट है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। तो ये देखिए कॉपर सल्फेट एंड आयरन में कलर कैसा था, पहले पूरा ब्लू कलर था, और अब देखना आयरन नेल का कलर कैसा दिख रहा है आपको, ये सॉल्यूशन में नीचे बैठ गया, ये आयरन नेल में रेडिश ब्राउन डिपोजिशन दिखेगा, और ये सॉल्यूशन में चला गया। इसको यदि मैं सेक कर दूं, ठीक है, आयरन नेल से, तो ये आयरन नेल तो आपने इसका पहले देख चुका है, ये आयरन नेल सेपरेट कर दिया। यहाँ पर कुछ डिपोजिशन दिख रहा है, डिपोजिशन में क्या कलर कौन कौन सा दिख रहा है ये आपको चेक करना है। पहला कलर, दिस कलर इज लाइट ग्रीन कलर, तो इसको हम कहेंगे पेल ग्रीन कलर। और रिएक्शन कौन सी हो गई, रिएक्शन है FeSO4 प्लस Cu। तो इन सब में से कंक्लूजन क्या है हमारे पास, कि कॉपर सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। तो ये हमारे पास पूरा सेटअप है। तो इस टोटल सेटअप में कंक्लूजन क्या निकला, कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट था रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, एल्यूमिनियम, फिर रिएक्टिव कौन हो गया, जिंक, उसके बाद रिएक्टिव है आयरन, एंड सबसे कम रिएक्टिव होगा कॉपर। ओके, तो इसी तरीके से हम अलग अलग मेटल्स लेंगे, सबका मेटल के साथ कोई सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराएंगे, और इससे चेक करेंगे हम कि मेटल की रिएक्टिविटी क्या है। इट मींस सिंस वी हैव अ लॉट ऑफ number of metals, so what we will do, we will add metal into the solution of other metals salt, okay, and if there is chemical reaction it means that metal is more reactive, if no reaction takes place it means metal is less reactive, okay। तो ये पॉइंट को अच्छे से याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, सॉल्यूशन प्लस मेटल, क्लियर याद रखना इस चीज को, ठीक है। Solution plus metal equal to no reaction. It means metal is less reactive. Solution plus metal equal to reaction. It means this metal is more reactive. तो हमने कौन कौन सी मेटल को कंपेयर किया है, हमने कंपेयर किया है एल्यूमिनियम और जिंक। तो एल्यूमिनियम और जिंक, इनमें कंडीशन हमको अप्लाई करना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन एक ही है, मेटल और सॉल्यूशन दोनों के बीच हमको केमिकल रिएक्शन देखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये जो एक्सपेरिमेंट हमारा था ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।